وہ آواز حاصل کروں بعض ان کے علماء کے اور ان کے جو بڑے بڑے اساسی ہیں، خاص کر سید قطب جو فرماتے ہیں سید قطب اسلام مسلمین کے بہت بڑے پیغمبر اور اسلامی مفسرین ہیں، جلالہ اسلامی کے لوگوں نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور ان کو ہمارے نوجوان واپس کسی سے ناظروں کا پڑھ رہے ہیں اور یہ جیسے بیوی دادا کا نام آپ یہ فقط سمجھ لیجیے سید قطب فرماتے ہیں تکتب البشریہ الی الباب الاطلاق وإلى الأديان پوری بشریت پوری انسانیت منحرف ہو چکی ہے، انسانوں کی عبادت کرتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ سَفَرٍ مِّنْهَا يُجْرُونِ بِالْعَلْمَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ گر سچوں میں سے کچھ لوگ مینارہ میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ سے ضرور دیتے ہیں مگر سب کافر ہیں۔ بلکہ سید قطب نے اسی توحید حاکمیت کی وجہ سے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ یہاں جاہلیہ ہے، یہ زمانے میں جاہلیت خانے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، توحید بڑی ہی قیمتی چیز ہے اور شرک بڑی بھیانک چیز ہے، اور ایک مومن کی شان، ایک موحد کی شان، ایک اہل حدیث کی شان یہ ہے کہ توحید کی خاطر اپنی زندگی میں کبھی بھی سودا نہیں کر سکتا، گردن کٹ جائے گی مگر توحید کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ یہاں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہمارے لیے تھوڑا باریک ہے، اور توجہ چاہوں گا کہ آپ حضرات اس باریک پوائنٹ کو، جہاں توحید کو خطرہ لاحق ہے، جہاں لوگ آ کر کے آپ کی توحید کو چرائیں گے، آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈالیں گے اور توحید کے نام سے آپ کو بہکائیں گے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں کہوں گا جو کہ ایک حقیقت ہے ہمارے سماج کی، ہمارے اہل حدیث معاشرے کی، کہ ہمارے درمیان اس پوائنٹ کے مسئلے میں اتنا زیادہ تساہل ہے، لاپرواہی ہے کہ بہت سے لوگوں کی توحید خطرے میں پڑ چکی ہے۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ ہے توحید حاکمیت۔ ہمارے درمیان توحید کی ڈیفینیشن، توحید کا تصور، توحید کا معنی، توحید کی تعریف بیان کرنے کے لیے کچھ لوگ آج جو ہمارے ہندوستان کے بر صغیر کے معاشرے کے بڑا طبقہ جو تحریکی طبقہ ہے، جو اخوان المسلمین سے متعلق ہے، جو جماعت اسلامی کا طبقہ ہے، جس کی توحید صرف اور صرف توحید حاکمیت سے عبارت ہے، ان کے یہاں توحید کا مطلب وہ نہیں جو آپ نے سنا، وہ نہیں جو نبیوں کی توحید تھی۔ نبیوں کی توحید تھی کہ اپنی قوموں کے پاس جاتے اور کہتے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تنہا ایک رب العالمین کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی اور توحید کے لیے تنہا رب العالمین کے سامنے سر جھکانے کو اور اسی سے لو لگانے کو لوگوں کو بلایا، تنبیہ کی، مگر ہمارے بر صغیر کے اندر ہمارے درمیان توحید کا ایک اور معنی بیان کیا جانے لگا، اور وہ ہے توحید حاکمیت۔ کیا مطلب ہے توحید حاکمیت کا؟ کہ اگر حکومت ہو تو صرف اسلام کی ہو، چاہے جہاں بھی رہو، حکومت الہیہ قائم کرو اللہ رب العالمین کی، یہ والی توحید ہی اصل توحید ہے۔ اور ان لوگوں نے توحید عبادت کو بالکل بے وزن کر کے، بے اہمیت کر کے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو اور دین کے تمام شعائر کو کہا یہ سارے کے سارے وسائل ہیں توحید حاکمیت کے لیے۔ اور توحید حاکمیت کے نام پر ہمارے بہت سارے نوجوان
जो जमात इस्लामी से जाकर जुड़ जाते हैं और फिर उनके इस बहकावे में आकर अपने मनहज से सौदा कर लेते हैं और तौहीद के नाम पर एक नया मफहूम पेश करके अपनी जमात को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे अजीजों, तौहीद हाकिमियत बज़ाहिर बहुत बड़ा लफ्ज नहीं, मगर इसका माना और मफहूम इनके नजदीक इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि सारे मुआशरों के सारे मुसलमान जहां पर इनके बकौल इस्लामी हुकूमत नहीं और तौहीद हाकिमियत नहीं, वो सारे के सारे मुआशरे काफिर हैं। इन्होंने सबको काफिर करार दिया और एक मुवहिद को, एक अल्लाह के तन्हा इबादत करने वाले मोमिन को न सिर्फ ये कि तौहीद इबादत से निकाला और तौहीद हाकिमियत पर लेकर के आए, बल्कि तौहीद हाकिमियत से तौहीद सियासत पर लेकर के आए, तौहीद इनकलाब पर लेकर के आए, तौहीद बगावत पर लेकर के आए और बगावत के बाद लोगों की तकफीर, लोगों को इस्लाम के बाहर करना, लोगों को काफिर करार देना और अवाम को नहीं, माफ कीजिएगा, अवाम को नहीं बल्कि अवाम के साथ साथ हुक्मरानों को, सबसे पहले हुक्मरानों को काफिर कहा। और मैं आपके सामने वो अल्फाज नकल करूं बाज इनके उलमा के और इनके जो बड़े बड़े असातीन हैं, खासकर सैयद कुतुब जो फरमाते हैं, सैयद कुतुब इख्वानुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े राइटर और इस्लामी मुफक्किरीन हैं। जमात इस्लामी के लोगों ने उनकी किताबों का तर्जुमा किया और उनको उर्दू के अंदर शाये किया। हमारे नौजवान बदकिस्मती से इन किताबों को पढ़ते हैं और इनके जरिए दीन की दावत का काम करना अपने लिए फख्र समझते हैं। सैयद कुतुब फरमाते हैं, इर्तद्दतिल बशरिया इला इबादतिल इबाद व इला जौरिल अदियान। पूरी बशरियत, पूरी इंसानियत मुर्तद हो चुकी है, इंसानों की इबादत करती है, अपने हाकिमों की इबादत करती है और जुल्म और अदियान के जुल्म सितम पर लौट चुकी है। वह नाक़सत अन ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह से फिर चुकी है। पूरी इंसानियत, कोई भी दुनिया का मुल्क इससे मुस्तस्ना नहीं। फरमाया वइन ज़ल्ला फ़रीक़ुन मिन्हा युरीदु अल माअदिन ला इलाहा इल्लल्लाह। गर्चे उनमें से कुछ लोग मीनारों पे खड़े होकर के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं जरूर देते हैं, मगर सब काफिर हैं। बल्कि सैयद कुतुब ने इसी तौहीद हाकिमियत की वजह से कहा कि ये जो मस्जिदें नजर आती हैं ये माबिदुल जाहिलिया है, ये ज़माने जाहिलियत के बुतखाने हैं। और इन्होंने यहां पर फरमाया मजीद से कुतुब कहते हैं फी ज़िलालिल कुरान, इनकी एक तफसीर है, इनकी तफसीर है फी ज़िलालिल कुरान, कुरान की छत्र छाया में, कुरान के साए में। कहते हैं वल्लदीना ला युफरिदूनल्लाह बिल हाकिमिय्या, वो लोग जो अल्लाह ताला को तौहीद हाकिमियत के तरीके से तन्हा नहीं जानते। फी अय्य ज़मान, चाहे कहीं किसी भी जमाने के लोग हो, वो फी अय्य मकान, चाहे किसी भी जगह के हो, जो लोग तन्हा अल्लाह ताला को हाकिम नहीं जानते और तौहीद हाकिमियत को और हुकूमत इलाहिया को कायम करना नहीं चाहते, हम मुशरिकून, वो मुशरिक हैं, सब मुशरिक हैं। ला युखरिजुहुम मिन हादा शिर्क, और इस शिर्क से वो बाहर नहीं आ सकते। अन यकून इतिकादुहुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुजरद इतिकाद, कि वो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और सोचे हम मुवाहिद हो गए। कतई नहीं, जब तक हुकूमत इलाहिया कायम नहीं करोगे तो मुशरिक रहोगे और मुवाहिद नहीं बनोगे। वला अन युक़द्दिमु शाइर लिल्लाहि वहदा, चाहे सारी सलावात, चाहे सारे रोजे और सियाम, चाहे हज और ज़कात, चाहे तमाम इबादतें अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लिए अदा करते रहे, वो शिर्क से बाहर नहीं माने जाएंगे। इस जुमले के साथ मैं ये बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, हमारी जमात के अंदर अहले हदीसों के दरमियान, सलफियों के दरमियान ये फिक्र धीरे धीरे दाखिल हो रही है और ये फिक्र है, ये एतिकादी मसला है, मनहजी मसला है, ये धीरे धीरे दाखिल हो रहा है। हमारी जमात की एक बड़ी तादाद, हमारे लोगों की एक बड़ी तादाद इस तौहीद के जरिए और तौहीद हाकिमियत के नाम पर हुकूमत इलाहिया के क़याम के लालच में और इस शुबहे में पड़ करके कहती है सब के सब मुशरिक हैं।
یہ मस्जिद नहीं, इबादत खाने नहीं, अल्लाह की इबादत की जगह नहीं, बल्कि ये जाहिलियत के जमाने के बुतखाने हैं। मैं एक सवाल करूंगा और इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सहाबा और आपसे पहले के नबियों का तरीका, उस पर गौर कीजिए। अगर तौहीद का माना यही है कि सिर्फ अल्लाह ताला की हुकूमत और इस्लामी हुकूमत कायम हो और इबादत करना और अल्लाह ताला को अकेले माबूद मानना ये तौहीद नहीं है, तो फिर नौज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अजाब क्यों सहा? आपके सर पर ऊंट की ओटरी डाली गई, आपकी गर्दन को पकड़ करके कपड़े से खींच करके दबा कर मारने की कोशिश की गई, आपके सर पर आपके रास्ते में कूलर फेंका गया, आपका चचा अबू लहब लोगों को आप दावत देने जाते पीछे पीछे पत्थर मारता था और कहता था ये पागल हो गया है, ये मजनून हो गया है, इसकी बात ना मानना, आपके पैरों को लहूलुहान कर देता। आपकी दावत क्या थी? लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो और अल्लाह वहदहू शरीक की इबादत कर लो, कामयाब हो जाओगे। मुशरिकीन मक्का कहते अजअल आलिहता इलाहा वाहिदा, क्या सारे माबूदों को छोड़कर एक की इबादत करें? क्या मक्का के मुशरिकीन जो काबा के अंदर 365 बुतों को रखे हुए थे, क्या वो उनको अपनी सियासत का खुदा मानते थे? अरे वो तो उनके सामने नजरें मानते थे, उनके लिए सजदे करते थे और चढ़ाने चढ़ाते थे, उन्हीं से मनबे मानते थे, उन्हीं को अपना वसीला समझते थे अल्लाह के यहाँ। तो इस शिर्क की मुखालफत अल्लाह के नबी ने की और तौहीद ये थी कि इन सब को छोड़कर तन्हा अल्लाह ताला की इबादत की जाए। तो अगर तौहीद का मतलब यही था जो सैयद कुतुब ने, मौलाना मौदूदी ने, हसन बन्ना ने, जमात इस्लामी ने और इख्वानुल मुस्लिमीन ने पेश किया है, तब तो नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हमारे नबी ने तौहीद का माना नहीं समझा, हमारे नबी ने गलत तौहीद की तफसीर की। और अगर इस्लामी हुकूमत कायम करना ही सबसे पहला फरीज़ा था और सबसे अहम मकसद था, जैसा कि जमात इस्लामी कहती है, तो फिर मुझे बताइए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के नतीजे में मक्का के अंदर घर घर के अंदर मुसलमान होने लगे, घर घर में बेचैनी पैदा होने लगी, मक्का वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, आपके जगह पे अबू तालिब के पास आते हैं और शिकायत करते हैं। अबू तालिब के पास आते कहते हैं कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, इसको कहो कि ये हमारे घरों के अंदर इख्तिलाफ ना डाले, हमारे मुआशरे में बेचैनी ना डाले, इससे कहो क्या चाहता है, क्या चाहता है मोहम्मद? क्या ये चाहता है कि इसको हम शहजादी किसी अरब की शहजादी से शादी करा देंगे? क्या चाहता है? माल दौलत चाहता है, माल दे देंगे, दौलत दे देंगे। क्या चाहता है? सरदारी चाहता है, बादशाह बनना चाहता है, अपना बादशाह बना लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप आते हैं और चचा ये बात पेश करते हैं तो आप फौरन इनकार कर देते हैं। आप कहते हैं कि चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज भी रख देंगे तो भी मैं अपनी इस दावत तौहीद से बाज नहीं आऊंगा। मुझे बताया जाए कि अगर हुकूमत इलाहिया कायम करना सबसे पहला मकसद था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को क्यों ठुकराया? आप बादशाह कबूल कर लेते, आप मक्का की सरदारी कबूल कर लेते और उसके बाद दीन की तबलीग करते। यही से पता लगा लीजिए आप कि ये जमात इस्लामी का दावा, इख्वानियों का दावा, तौहीद हक़नियत की बात कह करके हमारे नौजवानों को बहकाना, ये सिर्फ एक फराड है। अपनी खातिर खुद के लिए कुर्सी तलब करने का एक लालच है जिसको हासिल करने के लिए दीन का सहारा लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करूंगा कि हमें वो इन खतरनाक हथकंडों को समझने की तौफीक दे, हमारे नौजवानों को बचाए। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं खुलासे के तौर पर, बल्कि इलाज के तौर पर दो बातें कहूंगा कि मेरे अजीजों, ये तौहीद बड़ी कीमती चीज है। इस तौहीद को हमें वैसे ही समझना है जैसे हमारे नबी ने समझा, जैसे हमारे सहाबा ने समझा, जैसे सलफ सालेहीन ने समझा, वैसे नहीं जैसे जमात इस्लामी बतलाती है, जैसे सैयद कुतुब बतलाते हैं, जैसे मौलाना मौदूदी बतलाते हैं, बल्कि वैसे जैसे सलफ ने समझा।